So, in this session, we are going to study about post-drift study. In post-drift study, we will study convection current theory, mapping of ocean floor. After that, we will see ocean floor configuration, distribution of earthquake and volcano, concept of sea floor spreading, plate tectonics, and last one is movement of Indian plate. Now, start we are going to start from post drift studies. So, what post drift studies? In earlier class, we discussed what is continental drift. Okay, in continental drift, we studied about uh, what a German philosopher Alfred Wegener suggested in 1912. Okay, in 1912, what a German philosopher अल्फ्रेड वैगनर सजेस्टेड. उन्होंने क्या कहा था? जैसे बोला था उन्होंने कि ये according to the Wagner, the continents form a single continental mass and mega ocean surrounded the same. The supercontinent was named Pangaea, which means all earth, and the mega ocean called Panthalassa, meaning all water. He urged that the supercontinent Pangaea began to split. Pangaea first broke into two large continent masses as Laurasia and Gondwana, forming northern and southern component. After that, he gave some evidences in support of the continental drift theory, like the matching of continents, jigs of it, rock of the same age across the ocean, and trilite, placer deposit, and distribution of fossil. After that, a post-drift study started. In post-drift study, they suggested that most of the evidences was collected from the continental area. In continental drift theory, ये जो वैगनर साहब थे, इन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किया था, ये कहाँ से कलेक्ट किया था? कॉन्टिनेंटल एरिया से कलेक्ट किया था, है ना? तो is the form of distribution of flora and fauna deposit like tree. A number of discoveries added new information to the geological literature, particularly the information collected from the ocean floor mapping provided new dimensions for the study of distribution of ocean and continents. Okay, तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में क्या कहा गया कि अब जो है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद वाला जो स्टडी हुआ उसको क्या बोल रहे हैं? पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज बोल रहे हैं. इसमें दो चीज के बारे में बताया गया. फर्स्ट इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. Convectional current theory is given by Arthur Holmes in 1930. He discussed the possibility of convection current operating in the mantle portion. हम लोगों ने देखा था कि अर्थ को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर. तो आर्थर होम्स ने बोला कि मेंटल वाले पोर्शन में क्या चल रहा है? कन्वेक्शनल करंट ऑपरेट कर रहा है. These currents are generated due to radioactive elements causing thermal differences in mantle portion. Holmes urged that there exists a system of such currents in the entire mantle portion, and this was an attempt to provide an explanation to the issue of force on the basis of which continental contemporary scientists discarded the continental drift theory. अब ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया था, इसको क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया. उस समय के जो साइंटिस्ट थे, समवेयर अराउंड 1930 के आसपास, तो आर्थर होम्स के कॉन्सेप्ट को क्या सही माना गया कि हाँ, देयर इज अ कन्वेक्शनल करंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन, है ना? तो इसको क्या बोल रहा है? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, विच इज गिवन बाय आर्थर होम्स. हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्यों इस बात को सही माना गया कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला थ्योरी है वो सही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाले एरिया से एविडेंस कलेक्ट किया गया था, सी वाले एरिया को छोड़ दिया गया था. तो अब नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर. Mapping of ocean floor is basically related to research of the ocean configuration that revealed the ocean floor is not just a vast plain, but it is a full of relief. Relief simply means uneven surface, like which we see in our continental areas. Okay. In after that, the mid-oceanic ridges were found
to be the most active in terms of volcanic eruption. The dating of the rocks from the oceanic crust revealed the fact that they are much younger than the continental area. Rocks on either side of crust of ocean ridges and having the equidistant location from the crust were found to be have remarkable similarities both in the term of their constituents and their age. अब देखिए, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर जब हुआ तो ओशन फ्लोर को जब मैप करने लगे तो उसमें ये बताया गया कि ओशन का जो तल है, महासागरों का जो तल है, वो कैसा है, समरूप नहीं है ना। समरूप नहीं है कि जैसे आप यहाँ महाद्वीपों में जब आप देखते हैं तो समतल नहीं है, कहीं पर खाई है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है। तो वैसा ही पाया गया कि समुद्रों का सतह भी, जो समुद्री सतह है, वैसा ही है ना। और उसमें बेसिकली क्या मिला, अटलांटिक ओशन में मिला मिड ओशनिक रीजेस, है ना। मिड ओशनिक रीजेस आर बेसिकली वास्ट माउंटेन which carry much larger area but under the ocean surface, है ना। तो ये क्या मैपिंग करने पर ये पता चला कि क्या मिला, मिड ओशनिक रीजेस मिला, जहां पर बराबर क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। और वॉल्केनिक इरप्शन से पता चला कि इनका जो क्रस्ट है, महासागरों का जो क्रस्ट है, वो कैसा है, यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नाउ कम टू द पॉइंट, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। The ocean floor may be segmented into three major divisions based on the depth as well as the form of relief. The divisions are continental margin, deep sea basin and mid-oceanic ridges. और कॉन्टिनेंटल मार्जिन में जब आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन को क्या कह रहे हैं, बेसिकली इट्स अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन. They include continental shelf, continental slope, continental rise, and deep oceanic trenches. After that, abyssal plain. Abyssal plain are the areas where the continental sediment that move beyond the margin get deposited. These are extensive plains that lie between the continental margin and mid-oceanic ridges. कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रीजेस के बीच वाला जो प्लेन, मैदानी एरिया है, उसको क्या बोल रहे हैं, एबिशल प्लेन बोल रहे हैं। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन इज बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन, है ना। और इसमें क्या क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलेगा, कॉन्टिनेंटल राइज मिलेगा, डीप ओशनिक ट्रेंचेस मिलेगा। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फिगर ओशन वाला एक फिगर होगा, उसको दिखाएंगे। ओशन वाला एक फिगर होगा, ब्लू कलर का दिख रहा होगा, नहीं, और आगे, और आगे, यस यस, देखिए आप इसको इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, यस यस, यही। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है और एबिसल प्लेन है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, वो देख पा रहे हैं आप, इट्स अ शोर एरिया, है ना, छिछला वाला एरिया, क्या बोले, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। कॉन्टिनेंटल स्लोप देख रहे होंगे, एक महासागर, जब आप देखेंगे महासागरों के तट पर जाएंगे तो कैसा भूमि कैसा चला जाता है, स्लोपी एरिया टाइप का हो जाता है ना। तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आप देख पा रहे हैं। फिर कॉन्टिनेंटल राइज और एबिसल प्लेन है। एबिसल प्लेन के बारे में आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रीजेस के बीच वाला एरिया, है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, एबिसल प्लेन बोल रहे हैं। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या इंक्लूड हो गया, यही कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप सी ट्रेंचेस। ओके, नेक्स्ट इज मिड ओशनिक रीजेस। तो मिड ओशनिक रीजेस बेसिकली interconnected chain of mountain system within the ocean. It is the longest mountain chain on the surface of Earth, though submerged under the oceanic water. अभी मैंने आपको तुरंत बताया ही था। अब इसमें क्या होता है, फिगर के माध्यम से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहला फिगर जो अभी दिखाया गया था उसको दिखाया जाए। सबसे पहले हाँ देखिए, जब आप, हाँ हाँ, ये पहला वाला, इसके पहले
फर्स्ट फिगर, नो नो नो, ब्लैक एंड व्हाइट एक फिगर है, यस। देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे। देखिए, मिड ओशन रीज, इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम इज देयर, है ना। सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम, ये जो दो पार्ट जुड़ा हुआ है, एक मोहो लिखा हुआ मिल रहा है राइट साइड, और लेफ्ट साइड आपको लिथोस्फीयर दिख रहा है। तो ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये क्रेस्ट वाला एरिया है ना। तो इसी को बोला जा रहा है कॉन्टिनेंटल रिफ्ट सिस्टम एट क्रेस्ट। और रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी, है ना। और यहीं पर क्या है, इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, और जिसके माध्यम से क्या निकलता है, लावा, है ना। सर वो येलो वाला मैग्मा पोर्शन। चेम्बर में जो मैग्मा पाया जाता है, वो मैग्मा बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद उसको आप लावा बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव बहुत सारे वोल्केनोज पाए जाते हैं, है ना, मिड ओशनिक रीजन में। बेसिकली कहाँ पर ये पाया जाएगा, अटलांटिक ओशन वाले एरियाज में पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे भी कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट इज, इसी में अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। सर ओशन वो फ्लोर येलो वाला कॉन्फ़िगरेशन तो पोर्शन देख के लिया हम बारे में लोगों ने। बता रहे थे। येलो वाला पोर्शन तो स्टेनोस्फेयर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैग्मा है। ये येलो वाला जो पोर्शन है, ये मैग्मा है ना। और ये जो बीच, येलो वाले के जस्ट बीच में एरो दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी को यस क्रेस्ट सर। बोल रहे हैं, है ना। और इसी से ओके क्या सर। होता है, मैग्मा बाहर आता है, और उसी को क्या बोलते हैं, लावा बोल। तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में तीन चीज देखा आप लोगों ने, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, है ना, मिड ओशनिक रीजेस, और डीप सी बेसिन। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन में देखा आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस। एबिसल प्लेन अभी तुरंत बात कर ही रहे थे, और मिड ओशनिक रीजेस यही है ना। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो में, अब जब आप देखेंगे तो नोटिस कर पा रहे होंगे, एक ब्लू कलर का फिगर है। हाँ, एक और फिगर होगा, एक और फिगर होगा ब्लू कलर का, वो वर्ल्ड मैप के साथ। ये नहीं सर, ये इंडिया का मैप है। उसी फिगर को लगा दीजिए सर, जो पहले आया था कलरफुल थोड़ा, वर्ल्ड मैप का। हाँ, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो। अब इसमें आप जब आप देखेंगे, तो बेसिकली यू विल नोटिस अ लिटिल लाइन ऑफ डॉट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, और अफ्रीका के बीच में ये क्या है, अटलांटिक ओशन है ना। अफ्रीकन प्लेट आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं डॉट डॉट एरिया, एक लाइनिंग बना हुआ है ना। तो you will notice a line of dot in the central part of the Atlantic Ocean, almost parallel to the coastline. It further extends to the Indian Ocean. It bifurcates a little south to the Indian Ocean, Indian subcontinent, with one branch moving into the East Africa and other meeting a similar line from Myanmar to New Guinea. You will notice you will notice that this line of dot coincides with the mid-oceanic regions. The shaded belt showing another area of concentration coincides with the alpine Himalayan system and the rim of the Pacific Ocean. In general, the foci of the earthquake in the area of mid-oceanic regions are the shallow depths where the along alpine alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific. The earthquake are deeper seated ones. ओके, आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये जो अर्थक्वेक और वॉल्केनोज हैं, तो बेसिकली ये जो मिड ओशनिक वाला जो एरिया है, मिड ओशनिक रिज वाला एरिया, तो ये वाला बहुत ही आपको दिखेगा क्या, कि यहाँ पर वॉल्केनोज बहुत एक्टिव फॉर्म में है।
और ये पैसिफिक वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, तो ये रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दे आर वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनो। तो ये वाला जो एरिया बेसिकली जब आपसे पूछा जाए कि एक्टिव वॉल्केनो कहाँ कहाँ पर है, तो ये पैसिफिक ओशन के साइड साइड, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न शोर लाइन, और जब आप एशिया देखेंगे तो एशिया का ईस्टर्न शोर लाइन, और ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट में जब आप देखेंगे तो ये बना हुआ है, रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ भी है। तो ये जो जोन है बेसिकली क्या है, एक्टिव वॉल्केनो का जोन है। और ये मिड अटलांटिक रीज जो आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन में ये भी क्या है, एक्टिव वॉल्केनो का जोन है। और ये किधर चला गया है, मिड अटलांटिक ओशन में, जो ये जब आप ये देख पा रहे हैं, ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये ईस्ट में बाइफरकेट हुआ है, साउथ अमेरिका अमेरिका की तरफ, और फिर इधर साउथ अमेरिका की तरफ, और फिर ईस्ट में आप देखेंगे तो अफ्रीका की तरफ ये बाइफरकेट होकर चला गया, और ईस्ट में आगे बढ़ते हुए कहाँ तक चला गया, म्यांमार तक चला गया, है ना। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो। अब कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग अगला टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसमें बेसिकली क्या कहा गया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो हो रहा है, कैसे हो रहा है और किसने दिया ये कंसेप्ट। somewhere in 1961 somewhere in 1961 it was proposed that a hypothesis given that a sea floor spreading. Harry Hess, the name is Harry Hess, who proposed a theory in 1961 and urged that constant eruption at the crest of oceanic ridges caused the repurchase. Repurchase means explosion of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side. The ocean floor thus spreads. कहने का मतलब ये है कि ये जो मिड ओशनिक रिज आप देख पा रहे हैं, तो मिड ओशनिक रिज में क्या हो रहा है, क्रेस्ट से क्या हो रहा है, लगातार मैग्मा निकलते जा रहा है और लावा बनकर ये इधर साइड, यानी कि दोनों साइड जो क्या हो रहा है, मैग्मा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट होता जा रहा है, और लावा जो है क्रस्ट क्या है, न्यू फॉर्म में क्रस्ट आता जा रहा है और धीरे धीरे स्प्रेड होता जा रहा है ना। और इसमें यह भी कहा कि particularly the mapping of ocean floor and paleomagnetic study of rock from oceanic region revealed the following fact। क्या फैक्ट रिवील किया, क्या स्टडी करने पर पता चला, ये पता चला कि volcanic eruption are the common and they bring huge amount of lava to the surface of area। पहला तो ये ऑब्जर्व किए कि volcanic eruption जो हो रहा है वो कॉमन है और ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जो है सरफेस पर आ रहा है। दूसरा क्या किए, ऑब्जर्व ये किए कि सिमिलरिटी इन द टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, है ना। पीरियड ऑफ फॉर्मेशन कहने का मतलब है द रॉक इक्वी डिस्टेंस ऑन इधर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रीजेस सो रिमार्केबल सिमिलरिटी इन टर्म ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। ये जो मिड ओशनिक रीजेस है, इसके दोनों साइड में जब आप क्रेस्ट वाला एरिया पर एनालाइज करेंगे, कोई साइंटिस्ट जब एनालाइज किया इस बात को, तो पाया कि दोनों क्या है, सेम एज का है। तीसरा बात क्या ऑब्जर्व किए, तीसरा बात ये ऑब्जर्व किए कि द ओशन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक, है ना। कॉन्टिनेंट में जो महाद्वीपों में जो रॉक पाया जाता है वो बहुत ही पुराना है, किससे, महासागरीय वाले रॉक से, यानी कि महासागरों का जो क्रस्ट है वो यंगर है, किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, है ना। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच इज ऑब्जर्व बाय हैरी हैस इन 1961 and give a hypothesis related to sea floor spreading, है ना। So these are the things which is related to sea floor spreading. Now next point is plate tectonics। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, अब देखिए इस बात को ऐसे समझिए आप कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। इसी के somewhere in 1967 somewhere in 1967 तीन लोग थे, कौन थे, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन्होंने क्या किया, दे कलेक्टेड इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विथ कंसेप्ट टर्म प्लेट टेक्टोनिक्स।
इन्होंने अलग अलग आइडियाज को क्या किया, गैदर किया और एक नए कंसेप्ट के साथ आए। उस कंसेप्ट को क्या बोला, प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। अब टेक्टोनिक क्या है भाई, टेक्टोनिक से आप समझ नहीं पा रहे हो कि व्हाट इज टेक्टोनिक। अ टेक्टोनिक प्लेट इज अ मैसिव इरेगुलर स्लैब, स्लैब जिसको आप बोल पा रहे हैं स्लैब, सॉलिड रॉक, है ना। क्या है ये, इट्स अ काइंड ऑफ स्लैब लाइक रॉक। आप देखते होंगे कि स्लैब बनता है ना, सीमेंट का स्लैब बनाया जाता है। तो ये कैसा, ये टेक्टोनिक वर्ड जो यूज कर रहे हो क्या है, इट्स बेसिकली इज अ मैसिव irregularly shaped slab of solid rock generally composed of both continental एंड ओसनिक लिथोस्फेयर, है ना। कॉन्टिनेंटल और ओसनिक लिथोस्फेयर से ये बना हुआ होता है। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द स्टेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट। आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि स्टेनोस्फेयर, अपर मेंटल पोर्शन को स्टेनोस्फेयर बोला जाता है। और ये जो प्लेट्स हैं, ये जो स्लैब हैं, ये कहाँ पर कहाँ पर मूव कर रहे हैं, स्टेनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रहे हैं, है ना। The lithosphere include the crust and top mantle with its thickness range varying between 5 and 100 km in oceanic part and 200 km in continental areas. A plate may be referred to as continental plate or oceanic plate depending on which, यही वाला है, इसी फिगर को रहने दें, depending on which, ये ब्लू वाला जो फिगर था सर, ब्लू कलर का जो फिगर था, वर्ल्ड मैप का ब्लू कलर का जो फिगर था, यस यस। अब a plate may be referred to as continental plate or oceanic plate depending on which the two occupy a large portion of the plate. Pacific plate is largely oceanic plate, whereas the Eurasian plate may be called continental plate. The theory of plate tectonics proposed that the Earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates. अब देखिए, अब आप देख पा रहे, नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ अमेरिका का अलग प्लेट दिख रहा है ना। आप पढ़ भी पा रहे होंगे येलो येलो कलर में, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट देख पा रहे हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट देख पा रहे हैं, अफ्रीकन प्लेट देख पा रहे हैं, है ना। और ये रिंग ऑफ फायर जहाँ लिखा है, ये पैसिफिक प्लेट है ना। इट्स बेसिकली अ, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ओशनिक प्लेट बोल सकते हैं। और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या हो गया, नॉर्थ। और बहुत सारे प्लेट्स को क्या है, डिवाइड किया गया मेजर प्लेट्स में और माइनर प्लेट्स में। जैसे अंटार्कटिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है, साउथ अमेरिका का प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीका वाला प्लेट है, यूरेशियन वाला प्लेट है। और सम माइनर प्लेट्स आर कोको प्लेट, बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में क्या है, कोको प्लेट है। अरेबियन प्लेट है, मोस्टली साउदर्न सऊदी अरेबिया वाला जो रीजन है उसको क्या बोल रहे हैं, अरेबियन प्लेट बोल रहे हैं ना। फिर फिलीपीन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। तो दीज आर द माइनर प्लेट, है ना। जिसको फिर एक फ्यूजी प्लेट है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द माइनर प्लेट्स एंड सम मेजर प्लेट्स, जिसको मैंने आपको बताया अभी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट, ये सब क्या है, मेजर प्लेट्स। और देयर आर सम प्लेट बाउंड्रीज, है ना, सम प्लेट बाउंड्रीज आर देयर। तो प्लेट बाउंड्रीज 3 तरीके के होते हैं। एक हो गया डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक हो गया कन्वर्जेंट, और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपको मैंने बोला था कि सुनामी का कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा, तो ध्यान देना यहाँ पर, है ना। बात यह है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या कह रहे हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्री जब अ, एक नेक्स्ट फिगर सर करेंगे तो इसमें 3 टाइप का फिगर मिलेगा, लिखा हुआ भी है फिगर में, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आगे है और आगे और आगे, यस यस यही वाला, इसके पहले वाला। हाँ ये देखिए, वो क्यूब के शेप में है सर, क्यूब के शेप में फिगर होगा, 3 क्यूब बना हुआ होगा। हाँ ये है, देखिए। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री जब मैं कह रहा हूँ तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में आप देख पा रहे हैं कि प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना।
when new crust is generated as the plate pull away from each other, है ना। देखिए ये जब डाइवर्जेंट बाउंड्री आप देख पा रहे हैं तो प्लेट क्या है, तो एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिख रहा है ना। The sites where the plate move away from each other are called spreading site. The best known example of divergent boundary is the mid-Atlantic ridge, है ना। जो मिड अटलांटिक रिज आपको मैंने दिखाया था अटलांटिक ओशन में अभी बता रहा था मैं, तो वही क्या है, मिड अटलांटिक रिज इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, अमेरिकन प्लेट इज सेपरेटिंग फ्रॉम द यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट, है ना। डाइवर्जेंट बाउंड्री में अमेरिकन प्लेट जो है यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट से क्या हो रहा है, सेपरेट होकर दूर हो रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या देख पाते हैं आप, मिड अटलांटिक रिज, जिस किस चीज का एग्जांपल है, डाइवर्जेंट बाउंड्री का। और जब ये घटना हो रहा होता है, तो जब ये घटना हो रहा है तो दोनों जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो कुछ स्पेस बनेगा, है ना, कुछ जगह बनेगा। तो जब ये जगह बनता है तो ओशन का वाटर जो होता है क्या होता है, वहां पर जमा होना स्टार्ट होता है। और जमा होना स्टार्ट होता है तो सुनामी आने से पहले देखेंगे कि सी लेवल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोस्ट लाइन में सी लेवल क्या होता है, डिक्रीज होना होता है ना, पानी अंदर जा रहा होता है। और अचानक से जब ये स्पेस भर जाता है पानी का, तो अचानक से फिर ये क्या होता है, बाहर की तरफ आता है, और कोस्ट लाइन की तरफ जब ये आता है तो बहुत ही फोर्स के साथ जो है सिस्मिक वेव के रूप में, सुनामी के रूप में आता है ना। तो यही कारण है, और सुनामी का यही कारण होता है। तो बेसिकली आप समझ पाए डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री में देखेंगे, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेस डाइव्ड अंडर अनदर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री में आप देखेंगे कि एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के अंदर क्या कर दिया, डाइव कर दिया है, मतलब अंदर जा रहा है ना। The location where the shrinking of the plate occurs is called subduction zone, है ना। ये और जो जहां पर ये हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं, है ना। और तीन तीन तरीके से ये होता है, ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में होगा, या फिर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा, या फिर दोनों ओशनिक प्लेट होगा। ये जो कन्वर्जेंट प्लेट है, या तो ये दोनों प्लेट ओशन के होंगे, या तो दोनों कॉन्टिनेंट के होंगे, या फिर एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट का होगा, है ना। बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है। तो स्पेस जब क्रिएट होगा तो वाटर उस स्पेस में फिल होगा, और जब वो फिल पूरी तरीके से हो जाएगा तो फिर पानी बाहर आना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए क्या होता है, सुनामी लाइक थिंग्स जो है वो उत्पत्ति होती है उस। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। Transform boundaries are basically where the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other. ओके यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को आप जब देखेंगे तो एक प्लेट एक तरफ और दूसरी प्लेट दूसरी तरफ क्या है, मूव कर रहा है ना। पैरेलल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। कैसा मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, एंड दे आर मूविंग पैरेलली टू ईच अदर, है ना तो आपस में पास आ रहे हैं, ना ही तो दूर जा रहे हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर द मिड ओशनिक रीजेस। और ये कहाँ होता है, मिड ओशनिक रीजेस के परपेंडिकुलर होता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ये पता चला, और प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है ये पता चला। एंड द लास्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब ये जो इंडिया का लास्ट वाला जो मैप है, इंडिया का मैप है जो लास्ट वाला सबसे जो इंडिया का मैप है, जिसमें 4-5 इंडिया का ही फिगर दिखाए गए हैं। हाँ, ये जो फिगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसके देखिए और समझिए कि इंडिया जो है, पहले जो इंडिया, अभी का जो इंडिया आप देख पा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो कैसा था भाई पहले, तो नीचे से आप देखना शुरू करिए फिगर को, तब आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। India was a large island situated off the Australian coast in the vast ocean. The Tethys Sea separated it from the Asian continent till about 225 million years ago. India is supposed to have northwards started northward journey about 200 million years ago at the time when Pangaea broke.
India collided with the Asia about 40-50 million year ago, causing rapid uplift of the Himalayans. कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के पास आप ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, पहले कहाँ पर था? समवेयर अराउंड 225 मिलियन ईयर अगो, 225 मिलियन साल पहले इंडिया का जो पोजीशन था ऑस्ट्रेलिया के आसपास था। फिर ये क्या हुआ, नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट किया। नॉर्थवर्ड जब मूव स्टार्ट किए तो यूरेशियन यानी कि एशियन प्लेट से जब ये टकराए, यानी कि जहाँ पर हिमालय अभी आप देख रहे हैं वहां पर हिमालय नहीं था। वहां पर क्या था? वहां पर टेथिस नाम का एक सी हुआ करता था, सागर हुआ करता था। जब ये प्लेट ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू किया तो ये टेथिस सी का जो सेडिमेंट्स था वो क्या होना शुरू हुआ, ऊपर उठना शुरू हो गया, है ना। और वही क्या ले लिया, दैट अपलिफ्टेड मास टेक टेक क्या बन गया वो? हिमालय बन गया, है ना। टेक अ फॉर्म ऑफ हिमालय माउंटेन। अब इसमें देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि द टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द टेथिस सी and the Tibetan block was closer to Asiatic landmass. During the movement of the Indian plate toward the Eurasian plate, a major event that occurred was the outpouring of lava from a Deccan trap. और ये जब टेथिस सी ऊपर हो रहा था, हिमालय का निर्माण हो रहा था जिस समय, उसी समय एक और बात हो रहा था कहाँ पर? इंडियन प्लेट में दक्कन के पठार का निर्माण हो रहा था, है ना। This started somewhere around 60 million year ago and continue for a long period of time. Note that the subcontinent was still close to equator from 40 million year ago, and thereafter the event of formation of Himalayas took place. Okay, तो ये बात मैंने जो आपको समझाया फिर से वही मैं बता रहा था, है ना। अब ये बात आप समझिए कि किस फोर्स के कारण ये प्लेट मूव करते हैं। व्हाट आर द फोर्स एंड व्हाट इज द फोर्स विच विच जिसके कारण प्लेट्स क्या होते हैं? मूव करते हैं ना। तो प्लेट के मूव करने के लिए जो फोर्स होता है वो बेसिकली आप देख पाएंगे तो ये जो स्टेनोस्फेयर में जो मैग्मा होता है, द मोबाइल रॉक बेनिथ द रिजिड प्लेट is believed to the moving in a circular manner. The heated material rises to the surface, spread and begin to cool and then sink back into deeper depth. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convection cell or convective flow. है ना? Heat within the earth come from two main sources, radioactive decay and residual heat. ठीक है। तो ये बात जब आप समझ पाए कि प्लेट कैसे मूव कर रहा है, तो ये जो स्टेनोस्फेयर में जो मैग्मा आपको दिख रहा है ना, मैग्मा दिख रहा है, वो क्या है? यहाँ पर आपको एक कन्वेक्शन सेल दिख रहा है। आप जब पिछले वाले फिगर में देखेंगे, एक फिगर होगा और एक पीछे और एक पीछे और पीछे और पीछे, हाँ ये वाला फिगर देखिए। यहाँ पर स्टेनोस्फेयर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेंटल भी है ना। तो ये जो कन्वेक्शन सेल बन रहा है ना, कन्वेक्टिव जोन बन रहा है, क्या हो रहा है? सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है ना। तो इसी सर्कुलर मूवमेंट के वजह से ये जो मैग्मा सर्कुलर मूवमेंट में आ रहा है, इसी के वजह से क्या होता है? प्लेट्स को मूवमेंट मिलता है। जो प्लेट्स मैंने आपको बताया अभी, कौन सा प्लेट? अमेरिकन प्लेट, है ना, नॉर्थ अमेरिका वाला, साउथ अमेरिका वाला, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये सब क्या होते हैं? मूव करते हैं। और जितने भी ये प्लेट बोल रहा हूँ मैं, जितने भी प्लेट हैं वो बेसिकली कहाँ है? स्टेनोस्फेयर के ऊपर है ना, लिथोस्फेयर वाला एरिया। तो इसी के वजह से क्या होता है? प्लेट्स मूव होता है। और ये बहुत दिनों से हो रहा है ना। आप अभी देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो मैप अभी आप देख पा रहे हैं, ये 225 मिलियन ईयर 225 मिलियन साल पहले कैसा था, है ना। तो बेसिकली these are the things which allow the movement of plate, है ना। तो ये फोर्स हुआ जिसके वजह से प्लेट्स मूव करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट है, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज सेशन, प्लीज आस्क मी। कोई डाउट है?